introduction, normally what you use to tell about yourself? Introduction में क्या क्या बताते हैं? When someone asks you to introduce yourself, which thing you like to share with the person? Definitely the first thing is your name. Then previous qualification. So I'd like to ask about your percentage in matric and FSC as well. And the thing is from where you belong. And last question would be the reason why you joined CA. Fine. Let's start from this side, please. Your name, from where you belong, your percentage in matric and FSC, and the last thing is why you came here or why you joined the CA profession. You should be audible to everyone. Am I audible to you? Who is sitting at the end? बेटा आप दोनों यहाँ पर आ जाएंगे फ्रंट में. और ये जो दो बच्चे बैठे हैं आप यहाँ आ जाएंगे. If you are comfortable there, otherwise you can even come here, both of you girls. Yes, please. My name is Mohammed. My percentage in matric is 93%, and my percentage in intermediate FSC in matric is 73%. बेटा अहमद की आवाज आ रही है आपको? अहमद मर्द बनो. जी अब बोलेंगे. My name is Mohammed Ahmed Yusuf. My percentage in matric is 93%, and in intermediate. Student. Percentage in intermediate is 73%, and diploma from Gujarat. कैसे आना होगा? Yes. What's the reason? Your father inspired you. Okay, that's good. Very nice. जी बेटा. उसामा सबको आवाज आनी चाहिए. Name मैट्रिक में 93% और इंटर में 75%. हमारी 93% आई, हम तो हवाओं में उड़ रहे हो. कहाँ तक आवाजें जाए? 93% लेके इतना धीमा बोल रहे हो. Okay, why you join CA? After MD-CAT? Yes, mystery में admission लिया था education university में. क्यों? Environment अच्छा नहीं था, सब्जेक्ट से आपकी compatibility नहीं हो पाई. What was the reason? वो चाह रहे थे कि आप CA करें. CA में ऐसे कोई दूसरे फील्ड में. Okay, good. Have seat, please. जी बेटा. अच्छा, the purpose is कि आपकी आपस में भी familiarity हो, एक दूसरे को जाने, कौन कहाँ से आ रहा है, क्या बैकग्राउंड है, क्या नाम है, तो आप इतना इंटरेक्शन रखिए कि सब तक आवाज जाए. बहुत कम है ये तो, मुझ तक मुश्किल से पहुंच रही है आवाज. नाम से नहीं रहा मैं मैट्रिक में 90% है और इंटर में 64. Okay, why you join CA? खुद आपने कोई रिसर्च की? इंटरेस्टिंग फील्ड लगी? नहीं. ओह माय गॉड. चलिए, गुड हैव सीट. जी बेटा आपका हो गया. यस आप.
My name is Ramesh Sudha. My father name is Captain Jaz. I belong to Gujranwala. Very, very good. My percentage in matric is 96. My percentage in inter is 89. Why you joined CA? And ट्रेंड में है. Okay. जी बेटा. my name is Salah Shehbaz. Your name? Salah Shehbaz. Talha. My Okay. percentage in matric is 80% and my percentage in inter is 81%. My present is priority. That's good. जी. My name is I'm from Gaur, and my percentage in matric is 86% and in intermediate 76%. Interest का commerce field में I felt you might be from KPK. जी? I felt you might be from KPK. नहीं, हाँ देख के I feel. नहीं Gaur से ना पता नहीं. मैं आपकी थोड़ी सी हाँ. आप ही ऐसे लग रहा है जैसे नहीं ये पंजाबी केपी के लोग अच्छे होते हैं वैसे. जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ कोलीग्स हैं, अच्छे लोग हैं. जी. interest का commerce field में और father भी content है इसके में वेल डन. जी. वालेकुम सलाम. आपके में आया है मैट्रिक 76% और मैट्रिक में 93% आएगा. ये मैट्रिक कोविड वाला तो नहीं है सबका? फिर मैट्रिक में ज्यादा क्यों है? यस प्लीज. जैसे जैसे मेच्योर होते हैं इंटरेस्ट कम होता जाता है. जी आगे. मेडिकल के बाद एमडीकेट किया या वैसे ही डायरेक्टली है? ओके गुड. My name is Amit. I belong to Gaur. I got 98% marks in matric and 90% marks in English. And the first year I have to get up from इंशाल्लाह इंशाल्लाह. वेरी नाइस. वालेकुम सलाम. Muhammad Ayaz, and my percentage in matric is 64% and in inter is 77%. And I am from Lahore. I inspired from my family member. I met him one day and I researched about chartered accountancy and I liked it, so that's why I came here. गुड. My name is Marshall Baz. I got 97% matric and 89% SSC. My plan A was to do MBBS, but the plan A said successfully is I to family and the plan B was to. Can I go? गुड. My name is Mubashir Ismail. मुबशर. I got 69% in Inter and 76% in matric. गुड. नेक्स्ट प्लीज. My name is Madhu Sanan. Matric and Indian and I belong to South Punjab, district Punjab. Very good, very good. Okay, wait for a while. Online students, hope you are all good. Is it clear now? Am I audible to you? Aisha Usman, if you're getting any issue, you can text me. Are you getting my voice now? जी बिहारी से आप. I'm from Lahore. My percentage in matric is about 50% and in inter is about 60%. I am interested in this field, so I like this. Okay, that's good. Next, please. क्यों आपका इरादा नहीं है? खड़े हो. जी बोलिए. From? Okay. That's it? Yes, please. Walaikum salam. My name is Shyam. I'm from Dhaka. Yeah, bro. 81% in matric and 60% in intermediate. कैसे आना हुआ?
Inspired by someone, your own decision. It's It's dream. dream. Wow, that's great. That's great. Yes, please. दोस्त हो दोनों. ये भी मुल्तान से, और कौन था? यहाँ पे कोई था ना? Okay, बोले. Would you like to introduce yourself if you are comfortable? Otherwise, we can have tomorrow. Okay, no issues. So, let's move towards our subject, that is BWCS. BWCS stands for Business Writing and Comprehension Skills. Business Writing, if you talk about the subject specifically, in this subject, we will learn how to communicate professionally, in a professional way, in formal way. Formal way में आपकी communication, writings किस तरह से होनी चाहिए. We will learn about the thing and the comprehension skills. What do you think? What is the comprehension? गुड. ठीक कह रहे हैं आप. एक क्वेश्चन करके आए होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज गिवन होता है जहां से आपको क्वेश्चन होते हैं. द पर्पस ऑफ दैट पैसेज इज टू अंडरस्टैंड द ऑल द गिवन इंफॉर्मेशन. ऐसे ही है. Here you will comprehend, you will understand the all the process and skills of professional writing, right? So if you talk about the subject, BWCS is equally difficult and easy. First, let's talk about the positive aspect why BWCS is easy. You can see on the screen, if you talk about the chapters, units, there is writing process, business message, business report, vocabulary, augmentative writing, reading and comprehension. Short way में बात करें तो there will be 4 questions in your exam. First will be vocabulary, second will be letter writing or memo writing, third will be comprehension passage, and fourth will be essay writing. आवाज कम आ रही है आपको. यहाँ से किसी ने हैंड रेज किया था. इफ what you want to say, let me check it. Okay, Aisha, wait for a while. Within 5 minutes, I hope so. It's gonna be the issue is gonna be resolved. Just for 5 minutes. So there are main 4 questions. Vocabulary, letters, comprehension, and essay writing. The good thing about this subject, the easy thing, the simple thing is that I hope so there is no student sitting here who don't have the idea of these things. कोई ऐसा स्टूडेंट यहाँ पर बैठा हो जिसने इन चीजों के बारे में नहीं सुना या नहीं पढ़ा. Vocabulary, letters, comprehension, essays. Comprehension बेटा वही जो आप करके आए हैं. एक पैसेज गिवन होता है और एमसीक्यूज होते हैं. उसी पैसेज में से आप आंसर ढूंढते हैं और एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं. थोड़ा सा डेफिनेटली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल का होगा यहाँ पर डिग्री के हिसाब से, बट कॉन्सेप्ट सेम है. तो होप ये चारों क्वेश्चंस आपने कहीं ना कहीं गो थ्रू किए हैं, अटेम्प्ट करके आए. तो अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर आपके लिए आपकी इस सब्जेक्ट की एटलीस्ट आपकी बेस है. अकाउंटिंग के लिए जा रहे हैं या इकोनॉमिक्स के लिए जा रहे हैं या I2B की बात करते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स उस बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए डिफिकल्ट होगा. न्यू आइडियाज होंगे, आपकी बेस एज सच डेवलप नहीं है. तो इस सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो आपकी बेस समहाउ है इससे रिलेवेंट. ये सारी चीजें आप पढ़कर आ चुके हैं.
अब अगर हम दूसरे एस्पेक्ट पे बात करते हैं, व्हाई इट इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स एट द पीआरसी लेवल इज, पीआरसी के जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं, उनका जो एग्जाम है, उनका अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो वहां पर भी आपके टोटल मार्क्स 100 होते हैं। जो गिवन टाइम होता है बीडब्ल्यू से, इसमें भी आपका 2 घंटे है और आपका बाकी सब्जेक्ट्स का भी 2 घंटे है, राइट। बट द डिफरेंस इज, बाकी सब्जेक्ट्स में आपके 50 एमसीक्यूज आने, 2 घंटे में आपने वो 50 एमसीक्यूज सॉल्व कर लेने हैं। बट हियर इन दिस केस, उसी 2 घंटे में आपने 20 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। उसके साथ आपने एक ऐसे का क्वेश्चन टाइप करना है। उसके साथ आपने एक प्रेसी टाइप करनी है 100 वर्ड्स की, और उसके साथ आपने लेटर राइटिंग या मेमो राइटिंग का जो भी क्वेश्चन आता है आपने वो भी सॉल्व करना है। एंड द थिंग इज, अभी तक आप हैबिचुअल थे राइटिंग फॉर्मेट के, राइटिंग एग्जाम्स आपने दिए हैं, सो इट विल बी द फर्स्ट एग्जाम ऑफ विच विल बी ऑन सीबी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगा फर्स्ट होगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल की जब हम बात करते हैं बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्ट इसी तरह से है कि वहां पर सिर्फ आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं उसी 2 घंटे में, उसी 100 मार्क्स के लिए। और यहाँ पर उसी 2 घंटे में उसी 100 मार्क्स के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप फर्स्ट डे से अपना स्केड्यूल बनाते हैं, 15-20 मिनट्स की भी आप टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो एग्जाम तक आप यूज टू हो जाएंगे, आपके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं होगी। हाँ, अगर आप डिले करते रहेंगे कि एंड पे करेंगे, तो डेफिनेटली इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। अब अगर हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, तो आपके एग्जाम में जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है दैट इज ऑलवेज वोकैबुलरी, दैट इज ऑलवेज वोकैबुलरी। क्या चीज है? ठीक है रे। और क्या आ सकता है इसमें? हाँ, हाँ जी इरफान, 1 मिनट क्लास में आते हैं। जी, तो अच्छा, मुझे आदत है मूव करके मैं पढ़ाती हूँ, बट यहाँ पर आई नीड टू बी स्टे हियर, दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग अ बिट अनकंफर्टेबल एनी हाउ। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑलवेज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का जो क्वेश्चन होता है, वोकैबुलरी में जो हमारे एग्जाम में चीजें आनी है, वो जो इंक्लूडेड है, दे वो कुछ भी सकते हैं, उसमें सिनोनिम्स आ जाते हैं, एंटोनिम्स आ जाते हैं, फ्रेजल वर्ब्स आ जाते हैं और ईडियम्स आ जाते हैं। ये 4 चीजें हैं। अब ये क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वोकैबुलरी का क्वेश्चन है, वो हमारे एग्जाम में किस तरह से आता है, आपके चैप्टर नंबर 4 में है ये। 2 तरह से क्वेश्चन आता है। समटाइम्स तो वो हमें एमसीक्यूज, सॉरी, कॉलम मैचिंग फॉर्म में दे देते हैं। एक तरफ हमारे पास 10 वर्ड्स होंगे, सामने वाले कॉलम में हमारे पास 10 क्या होंगे, सिनोनिम्स होंगे, और हमने सिंपली क्या कर देना है, मैच कर देना है। 2 मार्क्स फॉर ईच। तो वो जो 10 हमारे पास वोकैबुलरी के वर्ड्स आएंगे, 2 नंबर एक के लिए होंगे, तो हमारा 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो जाएगा। या फिर क्या पॉसिबिलिटी है कि वो ये कर सकते हैं कि 5 सिनोनिम्स दे दें और 5 एंटोनिम्स दे दें। 5 सिनोनिम्स हम ऊपर आपस में मैच कर लेंगे, नीचे 5 एंटोनिम्स मैच कर लेंगे, तो 2 मार्क्स फॉर ईच, 10 के हमें 20 मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। या फिर थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है, एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन दे देता है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो कॉलम मैचिंग में ही होता है। द थिंग इज यू शुड बी अवेयर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द कंटेंट। वोकैबुलरी प्रिपेयर है तो चाहे वो कॉलम मैचिंग में आता है या एमसीक्यूज में आता है, आप अटेम्प्ट कर लेते हैं। थर्ड क्या होता है, वो एमसीक्यूज फॉर्म में दे देता है। अगर एमसीक्यूज फॉर्म में एग्जामिनर हमें क्वेश्चन दे रहा है, देगा 10 ही स्टेटमेंट्स,
चाहे वो सिर्फ सिनोनिम्स आ रहे हैं तब भी 10 ही होंगे, चाहे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों आ रहे हैं, 5-5 दोनों हैं, तब भी 10 ही होंगे। और एमसीक्यूज फॉर्म में अगर आ रहे हैं तो फिर भी 10 ही होंगे, 2 मार्क्स फॉर ईच। ये फन उनके मैसेजेस आ रहे दादा कि आवाज नहीं है, तो ये या तो माइक एडजस्ट कर दे, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? ये वाली माइक लगा। ओके, अगर तो एमसीक्यूज फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो फिर उसमें बचने की तरह जिसमें हो जाती है कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, तो वो सब कुछ एडजस्ट कर देगा। सीक्वेंस माइट बी 3 दे दे, 2 दे दे, या इडियम्स ज्यादा दे दे, स्ट्रक्चर ज्यादा दे दे, तो वो कितने टाइम जो पैटर्न होता है उसमें क्या होता है कि सिनोनिम्स ज्यादा आ रहे होते हैं और बाकी चीजें कम होती हैं, 2 इडियम्स दे देंगे या 2 फ्रेजल वर्ब्स दे देंगे या 1 दे देंगे। But the good thing about this subject is online students का आ रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स का हाँ जी, इनको तो इशू नहीं है, आप लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं है ना? असल में पहले हम इंट्रोडक्शन करा रहे हैं तो बच्चों को आवाज नहीं नहीं, अभी भी कह रहे हैं उनकी आवाज नहीं आ अभी आप जब माइक लगा रही। ऐसा तो नहीं था, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है। ये चेक करें। Is it fine now? Is online students, am I audible to you now? Zero voice. जी, ऑनलाइन स्टूडेंट से बात कर रही हूँ। अभी आवाज आ रही है आपको? ओके चलो, दैट्स फाइन, गुड। चलो, okay, till now we have discussed अच्छा, आई थिंक आपका फिर बेटा प्रॉब्लम आ रहा है मोबाइल का, आप चेक कर लो। अगर बाकी लोगों को आवाज क्लियर आ रही है तो फिर इट्स योर पर्सनल प्रॉब्लम, आप चेक कर लें। अच्छा जी, अभी तक जो है हम अपना पेपर फॉर्मेट, पेपर पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट चीज जो हमने डिस्कस की है दैट इज vocabulary। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर विल बी टोटल 4 क्वेश्चन इन आवर एग्जाम and total marks are 100 marks and given time will be 2 hours। अब इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन वोकैबुलरी का है। वोकैबुलरी में क्या है हमारे पास? I discussed with you there will be synonyms, antonyms, idioms and phrasal verbs। Now it depends upon the examiner कि वो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है। It might be possible होता है इस क्वेश्चन में 10 स्टेटमेंट्स होती है, 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स फॉर ईच ऑल द टाइम, जिस भी फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन आ जाए। अब सबसे पहली बात ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है कॉलम मैचिंग फॉर्म में, जिसमें सिनोनिम्स अगर आ रहे हैं तो उसमें हमारे पास 10 वर्ड्स हैं, सामने ही उसके 10 सिनोनिम्स हैं और हमने उनको आपस में मैच कर देना है। 2 मार्क्स फॉर ईच, 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हो गया। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज 5 सिनोनिम्स, 5 एंटोनिम्स सेपरेटली आ रहे हैं, कॉलम मैचिंग हो जाती है, 20 मार्क्स। थर्ड ऑप्शन किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज फॉर्म में आ सकते हैं, और एमसीक्यूज में अगर आता है तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो सारी चीजें आपसे पूछ ले, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स एज वेल। इज दैट क्लियर टिल नाउ? फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर? ओके, दैट्स ग्रेट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में वोकैबुलरी का आता है, सेकंड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कॉम्प्रिहेंशन का। अब कॉम्प्रिहेंशन से क्या मुराद है? वही वाला जो आप पढ़ के आ चुके हैं, देयर विल बी अ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। एक पैसेज होता है जिसमें काफी सारे पैराग्राफ्स होते हैं और आपको उसमें से आंसर्स ढूंढ के तो उसको सॉल्व करना होता है। अब इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जब कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, दैट विल बी फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन।
इट्स नॉट लाइक दैट कि इसमें से ही क्वेश्चन आएगा। हम सिर्फ फॉर्मेट से सीखेंगे, जो स्टेटमेंट है या जो कंटेंट है वो कुछ भी हो सकता है। वी आर नॉट श्योर अबाउट इवन अ सिंगल क्वेश्चन कि ये यहीं से ही आना है, ये अपने जहन में आप रखेंगे। हमें फॉर्मेट सीखने हैं, स्टेटमेंट कहीं से भी आ सकती है। Second question is from chapter number 6, that is reading and comprehension. If you talk about the total marks for this question, for question number 2, comprehension, there will be 30 marks. There will be 30 marks. And two parts for this question. First part will be MCQs from the given passage, and the second thing will be Pressy writing. Do you have any idea about the Pressy writing? It's like summary, our main points, but there are certain rules and regulations for Pressy writing which we need to follow. Comprehension second question है, marks division की बात करते हैं तो दो parts होते हैं, MCQs 20 marks के हैं and Pressy writing is for 10 marks. अब MCQs कहाँ से आते हैं? गिवन पैसेज में से है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि जो आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, जो आप पहले पढ़ते आ रहे हैं, शॉर्ट पैराग्राफ्स होते थे। यहाँ पर जो आपका गिवन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, इट माइट बी 4 पैराग्राफ्स और 6 और 8 और 12, बहुत लेंथी भी हो सकता है, पैराग्राफ्स बहुत सारे भी हो सकते हैं। लेकिन जो MCQs वाला क्वेश्चन होगा, अगेन सेम लाइक वोकैबुलरी, 10 ही स्टेटमेंट हमारे पास होंगी, 10 ही क्वेश्चन होंगे और MCQs फॉर्म में ही होंगे और 2 मार्क्स फॉर ईच, तो 20 मार्क्स इसके हमारे पास होंगे। अब क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर? जो हमारा इस क्वेश्चन के लिए जो MCQs होते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट कि हमेशा उसी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के अंदर से ही आपके सारे क्वेश्चंस आने हैं, बल्कि क्या हो सकता है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आपका जो what is the main idea of the third paragraph given in the passage? तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे कि थर्ड पैराग्राफ को अब जब आप पढ़ते हैं तो उसका मेन आइडिया आप क्या समझते हैं कि उसमें मेनली क्या चीज डिस्कस हो रही है। द थिंग इज कि अब यहाँ पर वो एग्जैक्टली वर्ड तो लिखा हुआ नहीं है ना पैसेज में, समझ रहे बात? तो आप अपनी कॉमन सेंस से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से काम लेते हुए फिर उसमें चूज कर लेते हैं राइट आंसर। बट अगेन सेम लाइक द वोकैबुलरी, यहाँ पर भी आपके पास एक प्लस पॉइंट ये है दैट स्टिल यू डू हैव द ऑप्शंस। MCQs में भी आपके पास सॉरी वोकैबुलरी में भी आपके पास क्लूज है, या तो कॉलम मैचिंग है या फिर MCQs है। इट्स नॉट लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, इट्स नॉट लाइक शॉर्ट क्वेश्चंस कि जहां पर आप ब्लैंक है, आपके पास कोई क्लू नहीं है। MCQ कॉलम मैचिंग आ जाता है तो तब भी सामने आपके जवाब लिखे हुए, आपने जस्ट मैच करना है अगर आपको वर्ड्स की मीनिंग पता है तो। MCQs आते हैं तब भी आपके पास राइट आंसर गिवन है, आपने चूज करना है। अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हो तो आपके पास क्लूज है। सेम विद दिस क्वेश्चन, आपके पास गिवन पैसेज भी है, अगर आप उसको पढ़ते हैं, वोकैबुलरी आपकी अच्छी है, रीडिंग स्किल आप एनहांस करते हैं, गिवन टाइम में आपके पैसेज को पढ़ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, आसान क्वेश्चन है आपका ये वाला। एंड 20 मार्क्स फॉर दिस। अब इस क्वेश्चन के हमारे पास कितने मार्क्स बचे? 10 मार्क्स, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का जो हमारा पैसेज है इसके लिए हमारे पास टोटल मार्क्स कितने हैं? 30 मार्क्स है, तो 20 मार्क्स जब MCQs के हो जाएंगे तो 10 मार्क्स बच जाते हैं, दैट इज फॉर प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग क्या है? जो हमारे पास गिवन पैसेज है, चाहे वो 5 पैराग्राफ का है, 4 का है, 3 का है, 2 का है, 8 का है, जितने भी उसके अंदर पैराग्राफ होंगे, हमने प्रेसी राइटिंग में क्या करना है? वी आर ऑल द टाइम सपोज टू राइट अ प्रेसी विद इन 95 to 100 वर्ड्स। प्रेसी जब हम करते हैं तो उसका वर्ड काउंट हमेशा गिवन होता है, जो कि 95 से 100 वर्ड्स तक का होता है। अगर हम उसे एक्सीड कर जाते हैं तो फिर वो आपका चेक नहीं होता है, राइट? तो अगर हम प्रेसी को देख लें तो इसमें थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं। वी विल चूज ओनली द इम्पोर्टेंट आर मेन पॉइंट्स, और दूसरी चीज है कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। इट्स नॉट लाइक दैट कि फर्स्ट पैराग्राफ में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड में जितने, थर्ड में जितने हैं, हम मार्क कर लें और वहां से उठा के हम अपना पैराग्राफ बना लें। इट्स नॉट लाइक दैट, बल्कि क्या करना होता है? नो नो, यस,
You're supposed to write by using your own wording. करना वही काम है। अब उसमें से आप कोई एक पॉइंट, कोई एक आइडिया भी बाहर से नहीं उठा सकते। जो पैसेज में गिवन है वही हमने करना है, बट उसको शॉर्ट करके कंसाइज वे में अपनी वर्डिंग में लिखेंगे। इज दैट क्लियर? सो 10 marks or for Prezi writing. Till now we are done with the 2 questions, vocabulary and comprehension, and total marks till now 50 marks, 30 marks for comprehension and 20 marks for vocabulary. The third question will be letter writing. यहाँ पर भी आपके पास चॉइस नहीं है। एग्जाम में या तो आपका क्वेश्चन आ जाता है लेटर राइटिंग का, या क्वेश्चन आ जाता है मेमो राइटिंग का। लेटर राइटिंग या मेमो राइटिंग। लेटर राइटिंग और मेमो राइटिंग में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। Letter writing is always, we use it for external communication, and memo writing is always for internal communication. For example, आप प्रोफेशनली जब आप किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो कंपनी से बाहर अगर आपको कहीं कम्युनिकेशन करनी है, कुछ खत भेजना है, लिखना है, कुछ मैसेज कन्वे करना है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जो कंपनी से बाहर कम्युनिकेशन हो रही है, एंड दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लेटर राइटिंग। और अगर कंपनी के अंदर आपकी कोई डिस्कशन हो रही है, आपकी एम्प्लॉइज के साथ हो रही है, या डायरेक्टर्स की कोई कम्युनिकेशन हो रही है, जो इनसाइड internal communication, and that will be in the form of memo writing. डिफरेंस एक तो ये हो गया, हमें ये पता है फॉर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन वी यूज लेटर राइटिंग, एंड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन वी यूज मेमो राइटिंग। और इसके अलावा क्या डिफरेंस है, राइटिंग फॉर्म में क्या डिफरेंस आ जाता है? लेटर राइटिंग में हमारे पास फॉर्मेलिटीज थोड़ी ज्यादा होती है। सेंडर्स रिसीवर्स एड्रेसेस है, सब्जेक्ट है, सैल्यूटेशंस है, क्लोजिंग है, सिग्नेचर है, ऑल दैट स्टफ। मेमो राइटिंग में जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो बहुत कम होती हैं, 4-5 चीजें हैं, बस एक ही लाइन में हम लिख देते हैं, दैट्स इट। लेटर राइटिंग में हमारे पास और मेमो राइटिंग में, दोनों में सब्जेक्ट हमने ऐसे ही लिखना है, चीजें वही आनी है, पैराग्राफ वही, हम 3 पैराग्राफ बनाएंगे। लाइक इन लेटर राइटिंग इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर मेन पैराग्राफ आता है, फिर जो लास्ट पैराग्राफ होता है जिसको आप कंक्लूजन कहते हैं, उसमें हम क्या लिख रहे होते हैं, कॉल फॉर एक्शन उसको हम कहते हैं, कि जिस पर्पस के लिए हम लेटर लिख रहे हैं उसको फिर लास्ट पैराग्राफ में हमने दोबारा एड्रेस करना होता है, बट आवर रिक्वायरमेंट्स इज फ्रॉम द रीडर जिसको हम लिख रहे हैं, और फ्रॉम द रिसीवर। मेमो राइटिंग में भी यही चीजें होती है। मेमो में कंसाइज वे में हो जाती है, लेटर में थोड़ा सा डिटेल होती है, दैट्स इट। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, बट देयर विल बी नो चॉइस, या लेटर राइटिंग का क्वेश्चन आएगा या मेमो राइटिंग का क्वेश्चन आएगा। 80% हमारे एग्जाम में लेटर राइटिंग का क्वेश्चन आता है, 20% मेमो राइटिंग का क्वेश्चन आ जाता है। इज दैट क्लियर? लेकिन हमें नहीं पता हम कौन से वाले पर्सन में फॉल कर रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन दोनों की ही एक जैसी होनी चाहिए। यस प्लीज। नो, बिल्कुल नहीं। जितना भी आपका जितना भी कंटेंट है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, चूंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है आपने अपने ही वर्डिंग में कन्वे करने हैं मैसेजेस, तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप बहुत कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी यूज करें या बहुत हाई लेवल की इंग्लिश यूज करें। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट योर मैसेज शुड बी कन्वेड इन अ क्लियर वे। आपकी बात अच्छे अंदाज में क्लियर हो जाती है, आप सिंपल इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, डजंट मैटर, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा मैटर नहीं करता कि बहुत कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी होगी तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। विदाउट मिस्टेक्स मैसेज कन्वे कर पा रहे हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। या डेफिनेटली आप अवॉइड करेंगे, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज grammar and spellings. Okay, till now we are done with the 2 questions. 3 questions. Third question is letter writing, total marks
20 मार्क्स का हमारा ये क्वेश्चन है लेटर राइटिंग का, या लेटर राइटिंग का आ जाएगा या मेमो राइटिंग का आ जाएगा। टिल नाउ टोटल मार्क्स आर 70 for 3 questions. So the last question is that will be from chapter number 5, argumentative writing, essay writing. This is the first question where you will have the choice. एग्जाम में सिर्फ एक यही क्वेश्चन आता है जहां आपके पास चॉइस होती है, और चॉइस भी इस तरह से नहीं होती, चॉइस भी इस तरह से नहीं होती है कि आपके पास एक ही के दो टॉपिक आ गए हैं और आपने कोई एक करना है। इसमें ये होता है कि जो हम ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन करते हैं, अटेम्प्ट करेंगे या आप प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें दो टाइप्स होती है। एक हम फिशबोन डायग्राम कहते हैं, एक को हम एफिनिटी डायग्राम कहते हैं। फिशबोन मीन्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। फिशबोन एनालिसिस भी जो हम कहते हैं कि जिसमें हम किसी चीज की कॉजेज इफेक्ट्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो जो आपका फिशबोन का ऐसे होगा, कॉजेज इफेक्ट्स का ऐसे होगा, उसका डिफरेंट टॉपिक होगा। और जो हमारी दूसरी टाइप है दैट इज एफिनिटी डायग्राम, जिसमें हम आइडियाज लिख रहे होते हैं, मेन आइडियाज, फिर उनको डिवाइड करते हैं सब आइडियाज में, वो आपका अलग टॉपिक होगा। तो उसमें से यानी आपने एक चूज करना है, या आप फिशबोन चूज करेंगे या आप एफिनिटी चूज करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि हम सिर्फ फिशबोन प्रिपेयर कर लें और फिशबोन में हमारे पास चॉइस आ जाती है दो चीजें, कोई एक टॉपिक कर ले। नो, दोनों में से क्वेश्चन आता है, एक फिशबोन का आता है, एक एफिनिटी का आता है। जो आपको इजी लगता है वो आप अटेम्प्ट कर लेते हैं। इजी की बात करें या अच्छे मार्क्स जो होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कॉजेज इफेक्ट्स में आ जाते होते हैं। एफिनिटी भी आप कर सकते हैं, बल्कि करेंगे। इट माइट बी पॉसिबल कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है जो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो फिर आप मूव कर सकते हैं दूसरे टॉपिक पे। अब ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन है। इसके टोटल हमारे पास 30 मार्क्स होते हैं, राइट। 10 मार्क्स फॉर द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हमारे पास कॉजेज और इफेक्ट्स आ जाते हैं, या फिर अगर हम एफिनिटी कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं आइडियाज, मेन आइडियाज एंड सब आइडियाज। और इसके 10 नंबर। फॉर एग्जाम्पल जो कॉजेज इफेक्ट का हमारा क्वेश्चन होता है, उसमें हमारे पास 3 कॉजेज और 3 इफेक्ट्स हमने लिखने हैं। तो क्या होता है, 3 कॉजेज और 3 इफेक्ट्स जब हम लिख देंगे तो हमें 10 मार्क्स मिल जाते हैं, राइट। इसी तरह एफिनिटी में जाते हैं तो वहां पर हमें 9 पॉइंट्स लिखने होते हैं। 3 मेन आइडियाज होते हैं और फिर सबके 2-2 सब आइडियाज होते हैं। तो अगर आप वो वाला टेबल कंप्लीट कर देते हैं, सारे आइडियाज एक्यूरेट लिख देते हैं, तो 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, राइट। अब बाकी बचते हैं हमारे पास कितने मार्क्स, 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स हमारे पास आएंगे ऐसे राइटिंग के। ऐसे राइटिंग किस तरह से होगी, 5 पैराग्राफ्स होते हैं ऐसे राइटिंग में। हमारे वर्ड काउंट एग्जामिनर की तरफ से गिवन होता है, दैट इज 150 वर्ड्स। मोस्ट ऑफ द टाइम 150 वर्ड्स ही ऐसे राइटिंग के लिए वर्ड काउंट रिक्वायर्ड होता है। समटाइम्स 250 कह देते हैं, बट उसमें फिर किसी और क्वेश्चन में वो कंपनसेट करते हैं, कोई चीज बहुत शॉर्ट दे देते हैं ताकि टाइम मैनेज हो पाए। मोस्ट ऑफ द टाइम 150 वर्ड्स का आप ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन करते हैं, जिसमें एक पार्ट हमारा फिशबोन या एफिनिटी का आ जाता है, कॉजेज इफेक्ट्स या आइडियाज का, 10 नंबर उसके हो जाते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास ऐसे राइटिंग का आ जाता है, 20 मार्क्स का होता है। इस 20 मार्क्स के लिए यू आर सपोज टू राइट द 5 पैराग्राफ्स। 5 पैराग्राफ्स में फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या लिखते हैं हम, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। एग्जैक्टली, यहाँ पर भी सेम होगा। फर्स्ट पैराग्राफ हमारा इंट्रोडक्शन का होगा और लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन होगा। द क्वेश्चन इज कि जो 3 पैराग्राफ सेंटर में आएंगे उसमें हमने क्या लिखना है। जिस तरह से हमने 3 कॉजेज और इफेक्ट्स लिखे हैं, तो उन तीनों पैराग्राफ में हम वही डिस्कस करेंगे। सेकंड एक पैराग्राफ में फर्स्ट कॉज और फर्स्ट इफेक्ट, फिर दूसरे में इसी तरह से अगले पैराग्राफ में सेकंड कॉज इफेक्ट आ जाता है, नेक्स्ट पैराग्राफ में थर्ड कॉज इफेक्ट आ जाता है। वहां पर हम हेडिंग्स की सूरत में लिख रहे होते हैं, यहाँ पर फिर हम उनको प्रॉपर वे में डिस्कस कर लेते हैं, राइट। सेम केसेस विद एफिनिटी, वहां पर भी हमने 3 मेन आइडियाज लिखे होते हैं जो हम इन तीनों पैराग्राफ्स में डिस्कस कर लेंगे। सो 150 वर्ड्स का 5 पैराग्राफ्स का जब आप ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन कर लेते हैं तो 20 मार्क्स उसके लिए होते हैं।
अगर वर्ड काउंट आपका ज्यादा हो जाता है तो वो चेक नहीं होता, जो एक्सेसिव आप राइटिंग करते हैं चेक नहीं होती है, तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलते। नहीं नहीं, जो आपका फॉर एग्जांपल हर स्टेप के मार्क्स होते हैं और आपका कंक्लूजन 150 वर्ड्स के बाद आपने शुरू किया है, तो वो जो कंक्लूजन वाला पैराग्राफ होगा उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। इज दैट क्लियर? कोई रिस्ट्रिक्शन होती है कि हमने पहला है वो इतने टाइम को लिखना है कि वर्ड से लिखना है, दूसरा इतना? रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, एक आपके लिए ट्रिक्स होती हैं, आइडियाज होते हैं कि हम इतने इतने वर्ड लेकर चले तो हम मैनेज कर सकते हैं। और रूल्स भी होते हैं, इंट्रोडक्शन हमेशा शॉर्ट होता है, कंक्लूजन हमेशा हम ज्यादा लिखते हैं उस हिसाब से। तो वो जब हम क्वेश्चन करेंगे मैं आपको उसके साथ साथ गाइड कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, कि हम कौन सा पैराग्राफ कितने वर्ड्स का लेकर चल सकते हैं। एक पैराग्राफ मिनिमम कितने वर्ड्स का होता है? बेटा इसमें डिफरेंट होता है। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन हम लिखते हैं 10 से 15 अल्फाज का। अगर हम बात करते हैं जो हमारे सेंटर वाले तीनों पैराग्राफ्स हैं, तो उनका वर्ड काउंट हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम रख लेते हैं 30 to 35 वर्ड्स। और जो हमारा कंक्लूजन होता है दैट इज ऑल द टाइम लाइक 35 to 40 वर्ड्स। तो इस तरह से 150 का आपका हो जाता है ऐसे प्रिपेयर। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो शुरू में आपको वर्ड्स का कॉन्शियस होना पड़ता है। अगर आप नोटबुक पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपके 30 वर्ड्स या 40 वर्ड्स कितनी लाइंस में आ रहे हैं, तो आपको बार बार वर्ड काउंट नहीं करना पड़ता। और अगर आप सिस्टम में कर रहे हैं तो वो तो और भी इजी होता है, वर्ड काउंट आपके पास आ रहा होता है, आप कर लेते हैं। एनी हाउ दिस वाज ऑल अबाउट द पेपर पैटर्न। यस प्लीज। उसमें बेटा आपके पास ऑप्शन होता है, आपके पास एग्जाम में ब्लॉक्स गिवन होते हैं, 3 ब्लॉक्स पॉजेस के गिवन होते हैं, 3 इफेक्ट्स के गिवन होते हैं। उसमें आप एक वर्ड की लिख ले हैं कॉज, या आप हेडिंग बना के लिख रहे हैं, या आप सेंटेंस की फॉर्म में लिख रहे हैं, आप लिख सकते हैं। एक सेंटेंस से ज्यादा नहीं लिख सकते। नहीं, कॉज और इफेक्ट, कॉज से मुराद है कि कोई जो प्रॉब्लम हो रहा है उसकी वजह क्या है, और इफेक्ट से मुराद ये है कि वो जो जिस वजह से वो काम हुआ है फिर उसका असर क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो हमारा कॉज और इफेक्ट है और वो भी डायरेक्टली रिलेट कर रहा होता है। डोंट वरी अबाउट द क्वेश्चंस। जब हम क्लास में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे बहुत डीपली डिस्कस करेंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, मुश्किल नहीं है। बट कंसिस्टेंट होने की जरूरत है, मेहनत ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो सीए मुश्किल नहीं है। और अगर वो रखेंगे अपना माइंड सेट कि एट द एंड आखिरी महीना लगा के आखिरी हफ्ता लगा के रट्टे लगा के कर लेंगे तो फिर नहीं होगा। रीजन इज कि जो हम एनुअल सिस्टम में पढ़ते थे उसमें हमें पता होता था ये इतनी सी बुक है, इसमें से पेपर आना है। अगर नहीं पढ़ा तो एंड पे हम जाके करते थे, क्या करते थे, सिलेक्टिव स्टडी कर ली। चॉइस होती थी ना, तो जो उसमें से इलावा आ गया उसके अलावा आ गया वो चॉइस में चला गया, और सिलेक्टिव स्टडी में से करके कर आके हम पास हो गए। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमें तो पता ही नहीं कि इस बुक में से कोई क्वेश्चन आना है कि नहीं आना। हमें तो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है अपने फॉर्मेट्स की। फॉर्मेट की जितनी 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 प्रैक्टिस कंटेंट की अच्छी होगी उससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम डील कर लेंगे। और ये जो प्रैक्टिस होती है, इट्स इम्पॉसिबल कि आखिरी महीने में हम सारे एसेस लेटर्स हर चीज की प्रैक्टिस कर ले। पॉसिबल है? डेफिनेटली नहीं है। एनीहाउ टाइम इज ओवर टिल नाउ। इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन यू मे आस्क प्लीज। ओके जी, तो कल इंशाल्लाह इसका जो है मॉडल पेपर भी आपसे डिस्कस करेंगे। आई विल शो यू।